Good morning, students. In this lecture we are going to learn some more programs. I hope you gone through all my programs which I taught in my earlier videos. Okay, so today we are going to perform or we are learn the program that is to print the given 3-digit number in reverse order. Okay, so what you have to do over here, you have to print, means given 3-digit, means input, you have to input 3-digit number, any 3-digit number, that maybe 1 2 3, okay, or any number, and what you have to do in your program, you have to do the process in such a way that this number, the given number, must print in a reverse order. That means in reverse order means 3 2 1. Okay, so any 3-digit number which will input by the user, that number must print in a reverse order. So let us start the programming and we concentrate here. Whatever logic we are using in our previous program, we are going to implement over here, and again we are going to understand that how the variable is replaced by the new values. Okay, so here I am going to start the this program. Okay, now see, two link file must be included in your program, and that link files are stdio.h. okay, standard input and output file, and the second link file is include conio, that is console input and output header file. Okay, now after this link file, the main thing is the main function, because every C program must return in a main function, and each program must define in a block. Okay, so here curly brace which is define the block. Now first statement which is always be in your program is declaration. Declaration consists of data type and variable. Now how many variable you are need to perform this operation, and what operation you are going to perform? That you are reading one value, that value is of 3-digit, and what you are going to perform? You are going to print the same number but in a reverse order. Okay, so here how many variable you have to define, understand here. Okay, now first I am declaring here as int n is your any 3-digit number, means if you assign the value 1 5 6 to n. Okay, so here n is for any 3-digit number, a variable n which is going to hold any 3-digit integer value. Okay, now we need two variables. Okay, because why? Because later I will explain why I am taking these two variables. Okay, because it is needed for the procedure. And the last one is reverse, because we are going to print this number in a reverse order. हम क्या कर रहे हैं? इसको reverse order में print कर रहे हैं. तो 6 5 1 इस तरह से ही प्रिंट होना चाहिए. तो जब हम रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करेंगे तो we need one more variable to store the reverse value. That's why we declare R to store the reverse value. Okay, after every declaration we must add one function, and that function is CLR SCR to clear the screen. Okay, which I explained in our previous video. Now printf. So print one more message for user that enter any 3-digit number. So in your output screen, okay, so in the output screen, when you run your program, this message will display on the screen, that enter any 3-digit numbers, means user knows what to enter.
entered over here. So enter any 3-digit number. Okay. Now it's time to read the value. Why? Because when user enter 3-digit number, compiler must read that number. So to read the number, we are using scanf statement. We are reading 3-digit number, and that number is of integer type. So the control string for integer type is %d, and we are storing that number. We are assigning that number to n, means we are storing that number at the address of n. Now here, if you enter number 1, 2, 3, 3-digit number, so which will assign to n, means here n is 1, 2, 3. Now once you initialize value to the variable, after that you have to do the processing. Okay, so how we do the processing to reverse this number? हमें क्या करना होगा? तो हमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे. So by using some arithmetic operators, we can reverse this, we can print this number in the reverse order. How? Now let's see. The first is a equals to and mod 10. This is sign of 10. So and mod 10. Okay. The logic ऐसा है कि पहले आप इन सब numbers को अलग-अलग कर दो. ठीक है? When you separate this number from the digit, so you can easily print in a reverse order. How? See. यहाँ पे आपने पहले क्या करना है? हमने क्या किया इस प्रोसेस से? क्या होगा? n is the value of 1, 2, 3. Okay, 123, which is divided by 10. Okay, so here 10 ones are 10. The remainder is 2. 10 twos are 20, and the remainder is 3. Okay, so here now see, after the execution of this statement, what we get? This sign is used for mod, and mod takes the remainder of your division. So division होने के बाद में remainder कितना बचा? 3, and the 3 will be assigned to a. Now the value of a is equals to 3. Okay, so here I am writing the value so that you can understand very well. So यहाँ पे हमने क्या किया? mod यूज किया. mod takes a remainder of division. So यहाँ पे हमने divide किया. क्या divide किया? and mod 10. So n की value यहाँ पे है, इसको divide किया. divide करने के बाद में इसका जो remainder बचा वो value यहाँ पे calculate हुई, and that value is assigned to variable a. Now the value of a is 3. Right? Now next, and divided by 10. अभी हमने क्या किया? n को ही 10 से डिवाइड किया. Now n, अब यहाँ पे n कितना है? 1, 2, 3. इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो what answer you will get? So you will get 12.3. That is 0, 13, 0, 0. So you will get 12.3. But n is the type of integer, so it will take only integer parts. Now the value of n is 12. So here first when पहले आपके n की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3. अब n की वैल्यू क्या हो गई है? 1. ओके, हमने क्या किया? हमने n को डिवाइड किया. जो डिवीजन से जो हमको वैल्यू मिली वो हमने फिर n को ही असाइन कर दी, है ना. सो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था. क्या बताया था? कि जब हम किसी भी वेरिएबल को नई वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो पुरानी वैल्यू उसके मेमोरी से निकल जाती है. सो पहले मेमोरी में n को कितना था? n की जगह पर कितना स्टोर था? 1, 2, 3. अब आपने फिर से n को नई वैल्यू असाइन की जो कि n डिवाइडेड बाय 10. सो व्हाट यू गेट? n डिवाइडेड बाय 10 यू गेट 12, है ना. यू आर गेटिंग 12. सो 12 इज असाइन्ड टू n. Now the new value of n is 12. Now again b is equals to n mod 10. Now n की वैल्यू अभी ये पुरानी वाली तो निकल गई है, ठीक है. सो यहाँ पे ये वैल्यू निकल गई है. अब हम क्या करेंगे? हम फिर से n को 10 से मॉड करेंगे. तो इस समय कंपाइलर कौन सी वैल्यू लेगा? ये न्यू वैल्यू लेगा. Now 12 is divided by 10. Okay. So here 10 ones are 10 and the remainder is 2.
सो हियर वी आर यूजिंग मॉड टेक्स ए रिमाइंडर और अब ये जो रिमाइंडर आया है वो किसे देंगे हम, वेरिएबल b को। सो द वैल्यू ऑफ b इज 2, राइट। तो अभी वैल्यू b की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि हमने रिमाइंडर। डोंट कंफ्यूज इन मॉड साइन एंड डिवीजन साइन। डिवीजन साइन टेक्स अ quotient of your division and mod sign takes a remainder of your division. Okay, now the next is again add divided by 10. Don't forget to put the semicolon at the end of the statement. Now add divided by 10 and कितना था अभी, 12 है। So 12 को अगर 10 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 1.2. As I told you, n is of integer type, so it will take only integer value. So what compiler assigned to n this time, only 1. Now the value of n is equals to 1. ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई है। अब हम r यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो r क्या कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे, सो r इज इक्वल्स टू, अब हम एक एक वैल्यू करेंगे। अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3, 2, 1 ऐसा हमारा प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो आउटपुट हमारा इस तरह से होना चाहिए, ये हमारा आउटपुट होगा। तो इस आउटपुट को लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक क्या है कि हमने क्या किया, सबसे पहले इन सभी जितनी भी डिजिट्स आपने दिए थे 3 डिजिट, वो डिजिट को हमने पहले सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग मॉड एंड डिवीजन प्रोसीजर। ओके, सो हमने सेपरेट कर दिया। जैसे हमारा 3 एक इसे a में है स्टोर, 2 अभी b में है और 1 अभी n में है। अब हमें क्या करना है, हम इसकी प्लेस वैल्यू चेंज कर देते हैं। प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यूनिट, 2 की 10, 1 की 100। हमने क्या किया, 3 को जो यूनिट प्लेस पे था उसको 100 प्लेस पर लेना है, जो 10 प्लेस पे था उसको 10 प्लेस पर लेना है और जो 100 प्लेस पे था उसको यूनिट प्लेस पर लेना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो वैल्यू रखनी है, यानी 100 प्लेस पर कौन सी वैल्यू रखनी है, 3 किसकी वैल्यू है, a। सो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस, नाउ 10 प्लेस पर किसको रखना है, 2 किसकी वैल्यू है, b की, तो b मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस और 1 रखना है, 1 किसकी वैल्यू है, n की। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोसीजर करना है। इस प्रोसीजर का क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है, 3 मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया, 300। फिर उसके बाद में b की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मींस प्लस 20 एंड n की वैल्यू 1। सो यहाँ पे 1, 2, 3 हमारा आउटपुट क्या हो गया, 3, 2, 1, जो कि r को असाइन होगा, r में स्टोर होगा। इसे प्रिंट कर दीजिए, मिल गया आपको रिवर्स। सो प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इज इक्वल टू %d, जो किस में है, r में है, और यहाँ पे गेट ch आप लगा दीजिए और प्रोग्राम को एंड कर दीजिए। सो इन दिस वे you can reverse the given digit number, 3 digit number. This procedure is for only 3 digit number. If you want to accept more than 3 digit number, then उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा। तो प्रोसीजर इज डिफरेंट फॉर 4 digit number, 5 digit number according to the digit. Okay, I hope you understand. Again I will revise some things. That is what you are reading. You are reading 3 digit number, that is हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, हमने लिया 123। एक 3 डिजिट नंबर लिया जिसे हमें रिवर्स प्रिंट करना था। सो टू प्रिंट द गिवन नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, व्हाट यू हैव टू फर्स्ट डू, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उस नंबर को, हर नंबर को सेपरेट करना है। और सेपरेट कैसे होगा, तो सेपरेट मॉड और डिवाइड ये साइन से ही होगा। तो इस तरह से आप हर कैलकुलेशन, यानी हर स्टेटमेंट आपका, एवरी स्टेटमेंट किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करता है, ये आप रफ में लिख कर रखिए। और फिर जैसे जैसे जिस वेरिएबल को आपको असाइन होता है वैल्यू, उस वेरिएबल को आपको कौन से प्लेस पर रखना है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये प्रोसीजर में लिख सकते हैं। ये जो मेन है अपना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मेन है कि आपको किस
कौन सी प्लेस पर कौन सा डिजिट रखना है, और वो डिजिट जिस वेरिएबल में रहेगा उस डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसका एडिशन करोगे तो आपको इस तरह से आपकी वैल्यू मिल जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी रिवर्स किसी भी डिजिट का अगर रिवर्स प्रिंट करना है, रिवर्स नंबर प्रिंट करना है, तो पहले आपको हर डिजिट को सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने के लिए आपके पास मॉड एंड डिवाइड। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि हमने क्या किया, एन को ही एन से रिप्लेस कर दिया, यानी हमने एन डिवाइडेड बाय 10 किया, इसकी जो वैल्यू हमने एन को ही दे दी, क्योंकि हमारे पास जो पहली वैल्यू थी, पहले हमने एन को कितना दिया था 1 2 3, हमारा उसका काम हो चुका है, हमें अभी ये 12 वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने एन को उसी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने बी के साथ बी एक वेरिएबल लिया, उसमें जो रिमाइंडर है मॉड के साइन से उसको स्टोर किया, अगेन हमने एन को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, एन डिवाइडेड बाय 10 से जो भी आपके पास वैल्यू है वो फिर से हमने एन को ही दी। तो ये अच्छी प्रोग्रामिंग की हैबिट्स है कि आप कम वेरिएबल में जितना कम वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ करोगे उतना आपका लॉजिक अच्छा स्ट्रांग रहेगा, और हर वेरिएबल को आप मैक्सिमम यूज़ करोगे। अननेसेसरी ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और जो भी स्टेटमेंट से जो भी वैल्यू कैलकुलेट होती है वो वैल्यू आप रफ में लिख कर रखिए, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं। तो आपका पहला काम है कि आप जो भी प्रोसेस के लिए जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं उन स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, वो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है वो आप पहले रफ में कर लीजिए। इसी तरह से लॉजिक डेवलप किए जाते हैं। तो हमने अभी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको पढ़ाया है अरिथमेटिक ऑपरेशन का एक हमने प्रोग्राम लिया, एक हमने स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स उसको लिया, उसको हमने 2 टाइप से पढ़ा, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। और आज मैंने आपको रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, आप प्रैक्टिस के लिए 4 डिजिट का रिवर्स करके रखी देखिए, देन उसके बाद में आप 5 डिजिट नंबर को भी आप रिवर्स करके प्रिंट करके देखिए, ठीक है, जो मैं आपको असाइनमेंट में देने ही वाली हूँ। देन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊँगी कि हर प्रोग्राम में फ्लो चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं। थैंक यू।